We welcome Dr. Amit Kumar Mandal, sir, and he's a senior director of the pulmonology, and he has a vast experience, a 24-year experience in this line, and he's MBBS, DTCD in the respiratory disease and tuberculosis, and DNB in the respiratory disease. So we welcome Dr. Amit Kumar Mandal. Thank you. So we are facing lots of challenges regarding the lung disease. Which type of the lung disease are very common in India today? So it's a very relevant question. In today's world, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, जो आम तौर पे because of tobacco smoking and environmental pollution होती है, asthma, infections, particularly tuberculosis, pneumonia, viral infections, फिर एक तरह का condition होती है जिसमें the lung starts shrinking on its own called interstitial lung disease and the dreaded word called lung cancer. ये सब these are the most common diseases that we see as respiratory physicians. And sir, some people talk about the AQI. And what is the AQI and what is effect on our lungs and our breathing habit? AQI or Air Quality Index, आज के दिन में it's in every newspaper and every news channel. It's basically a simplified term for the complex pollution data, which comprises of multiple things like particulate matter of different sizes, ozone, carbon monoxide, carbon dioxide, and so on and so forth. In सब के मिला के there is this yellow, green, red करके एक graphic होती है, as well as there are numbers. So less than 50 is something which is healthy, more than 150 is something which is unhealthy, and more than 300 जो जैसे Delhi or even in some areas of Chandigarh Tri-City are more than 250, 300, that falls in the hazardous range. That means that such if you are exposed to such amount of environmental pollution, we, even being normal individuals, we will end up suffering some form of respiratory diseases. Okay. And sir, अगर हम बात करें तो asthma and COPD, तो what the difference between the asthma and COPD and how we can cure both? So ये दोनों बीमारियां एज़मा और जिसको हम हिंदी में दमा बोलते हैं, Yes. या और COPD जो आमतौर पे हम लोग नॉर्मली देखते हैं तंबाकू सेवन के साथ साथ. So ये दोनों कुल मिला के दोनों chronic diseases हैं. They are both chronic diseases. The problem is that one of them, which is the COPD, is a progressive disease. और दमा जो है is a very reversible, मतलब जिसमें आमतौर पे कोई ना तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ना किसी प्रॉब्लम में पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं. सो दे मे लीड अ नॉर्मल लाइफ. नोबडी वुड गेट टू नो that this person has asthma. But COPD is a progressive disease. और ये आमतौर पे तंबाकू सेवन या एनवायरमेंटल पोल्यूशन या दूषित जगह पे हम अगर काम करते हैं, पर्टिकुलर जब ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हम कहते हैं, इन सब चीज़ों में ये दिस इज़ अ प्रोग्रेसिवली डिटेरियोरेटिंग, जैसे खांसी, सांस फूलना, ये बिगड़ती जाएगी. दमा इज़ ईजी टू ट्रीट एंड ईजी टू मैनेज. सर ये आजकल फीमेल्स में भी है प्रॉब्लम, तो उनमें किस वजह से है ज़्यादा? हमारे भारतवर्ष में प्रॉब्लम ये थी कि एक टाइम में, अब तो खैर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग वेरी हैवी ऑन कि डोमेस्टिक फ्यूल बंद करके गैस के प्रचलन ज़्यादा हो गई है. जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं हु हैव कुक्ड ऑन डोमेस्टिक फ्यूल्स, जैसे कोयले और लकड़ के साथ साथ हम लोग जो आग जला के हम खाना बनाते हैं, जो अंगीठियाँ अभी भी कुछ कुछ एरियाज़ में प्रचलन है, दोज आर ladies are actually using them, and that is why महिलाएं ज़्यादा दिक्कत आती हैं इन सब एक्सपोजर्स के वजह से, और इसलिए उनको इस तरह के सांस की तकलीफ और उनको बनती है ये COPD. हालांकि उन्होंने कभी तंबाकू सेवन नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको क्रॉनिक डिजीज, सांस की तकलीफ हो जाती है. ओके. एंड सर व्हाट्स अबाउट द ये जो वार्निंग साइन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लंग्स की प्रॉब्लम हमें शुरू स्टार्ट हो चुकी है? कुछ वार्निंग साइन कुछ हमें. हाँ, गुड. सो इसमें बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जिससे हमें आइडिया लग सकता है कि एक इंडिविजुअल को सांस की किसी तरह से रेस्पिरेटरी या फेफड़ों की तकलीफ हो. तो जैसे सांस फूलना, और जो आम दवाइयों से आम कंट्रोल नहीं होती है, या खांसी जो 2 से 4 हफ्ते या 6 हफ्ते से ज़्यादा चल रही हो, तो इस तरह की चीज़ें, या खांसी में खून आ रहा हो, या जिसको दिक्कतें आ रही हैं जो थोड़ा सा बहुत चलने में उनको प्रॉब्लम होती हैं, छाती में दर्द होना, दीज आर वार्निंग साइंस कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उनको जांच पड़ताल करने के लिए निकटतम डॉक्टर के पास दे शुड बी गोइंग डाउन टू गेट द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस डन एंड बेसिक ट्रीटमेंट इनिशिएटेड. सर टुडे लंग कैंसर इज़ वेरी कॉमन. मतलब लॉट्स ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द लंग कैंसर. हाउ वी कैन क्योर?
सो लंग कैंसर वर्ल्ड ओवर में कैंसर की प्रेवलेंस बढ़ रही है, नंबर्स बढ़ रही हैं। इंडिया में भी, इंडिया इज़ नॉट इम्यून, इंडिया में भी सेम चीज़ें हैं। इंडिया में यूनिकली थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मेल्स में लंग कैंसर ज़्यादा दिखती है कंपेयर टू फीमेल्स, बट दोनों की तादाद अब धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। इसके कई सारे कारणें हैं और इसके जो हमारी जो दिक्कत है कि वी एंड अप डायग्नोसिंग देम वेरी लेट, और ज़्यादातर टाइम 4 स्टेजेस होती हैं कैंसर की, और ये ज़्यादातर टाइम 70 से 90% टाइम ये दे गेट डायग्नोस्ड एट स्टेज 3 और 4, जहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम हो जाती हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। अगर हम, जैसे ये वार्निंग साइंस हैं, अगर हम टाइमली अगर जांच पड़ताल कर लें, अगर अर्ली स्टेजेस में हम इनकी डायग्नोस कर पाएँ, तो इसके इलाज, रिजल्ट, आउटकम बहुत अच्छे होते हैं। ओके। एंड सर आजकल जैसे लोग सोते हैं, स्नोरिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एंड जितने भी ओबीज पेशेंट्स हैं, तो इट्स लंग्स आल्सो अफेक्टेड इन दिस और नॉट? लंग्स डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होती हैं, बट हाँ, इसमें स्नोरिंग एक टाइम में कहा जाता था कि चैन की नींद सो रहा है इसलिए इसको खर्राटे आ रहे हैं, बट इन टुडेज वर्ल्ड स्नोरिंग इज़ नॉट टू बी टेकन लाइटली, इन पर्टिकुलरली इन ओबीज पेशेंट्स और इन पेशेंट जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस हैं। उनमें स्नोरिंग एक लक्षण हो सकता है कि ये एक सीरियस बीमारी हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, स्लीप अच्छी तरह से क्वालिटी की नहीं होती है, स्लीप फ्रैगमेंटेशन होती है, टूट टूट के नींद होती है, जिसकी वजह से इंसान डे टाइम में उनकी नींद की झपकें आती हैं, कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और रात के दौरान जब ये नींद की फ्रैगमेंटेशन होती है, उस टाइम में ब्लड प्रेशर सर्जेस होती हैं, नींद टूटती रहती है, नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है, शुगर कंट्रोल बिगड़ जाती है, तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स। हार्ट प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो स्नोरिंग एंड ओबीज पेशेंट्स में होती हैं, और इसको जितना जल्द निवारण करें उतना अच्छा रहेगा। एंड सर कोई ऐसी मेडिकेशन जो आजकल हम एडल्ट्स, अगर हमें पता चले कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दे कैन टेक सेफली, एनी मेडिकेशंस रिगार्डिंग Medications to prevent the lungs problems? नहीं, there are no medications to prevent, but there are vaccines that are available. तो बट वैक्सीन से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि there is certain things जो हम बिना वैक्सीन के भी हम कर सकते हैं। एक तो लीडिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड डस्ट एरियाज, दूषित एरियाज में अगर आप जाएँ तो कम से कम कपड़ा या एक सर्जिकल मास्क मुँह के ऊपर रख के आप वहाँ पे उस टाइम पे टाइम निकालिए। और एक वैक्सीनेशन पोस्ट कोविड जो सबसे बड़ी अहम सीख है कि वैक्सीनेशन से हम बहुत सारी बीमारी से बचाव कर सकते हैं और सीरियस रूप उसकी देखने को हम अवॉइड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन दी एल्डरली पेशेंट्स, और जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज़ या क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ ऑलरेडी हैं, इनकी बॉडी की इम्यूनिटी और घटी हुई होती है और इनको तरह तरह के इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम वैक्सीनेशंस रिकमेंड करते हैं इन दी एडल्ट सेटिंग्स, और ये सबको अपनाना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों और कैसे इसको लिया जाए। आप बेस्ट है कि टॉक टू योर क्लोजेस्ट और द डॉक्टर दैट यू गो टू एंड सीक एन ओपिनियन फ्रॉम देम। So thank you Dr. Mandal, and it's very informative session for our viewers. And अगर आपको किसी को भी अपने वार्निंग साइन सर ने जो बताए हैं अगर लगते हैं, तो प्लीज़ अपना थोड़ा प्रिकॉशंस लीजिए ताकि आप अपने लंग्स को सेव कर सकें। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द informative session.